میرے محترم بھائی اور دوستو، دنیا میں ہر انسان لمبی زندگی چاہتا ہے، جلدی مرنا نہیں چاہتا۔ پتہ ہے موت ہے، پھر بھی چاہتا ہے موت نہ آئے۔ ہمیشہ خوشیاں چاہتا ہے، لیکن کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی ہمیشہ خوش رہا ہو۔ یہ اس طرح ہے، وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً۔ دکھ بھی آئے گا، پریشانی بھی آئے گی، خوشی بھی آئے گی۔ پھر کوئی انسان بوڑھا نہیں ہونا چاہتا، کہتا میں ہمیشہ جوان رہوں، لیکن بڑھاپا بھی آتا ہے۔ اما المشیب فصبح بدا واما الشباب فلیل افل۔ بڑھاپا تو آتا ہے، کتنے آج کل ٹونک ہیں اور کتنی وہ اس کے لیے پارلر بنے ہوئے ہیں اور کتنی ٹیکنیکس ہیں، رنکل دور ہو جائیں، اور کیپسول ملتے ہیں اور وائٹامن ملتے ہیں، لیکن بڑھاپا آ ہی جاتا ہے۔ پھر انسان چاہتا ہے کہ میں ہمیشہ میرے پاس دولت رہے، میری نسلوں کے پاس دولت رہے، لیکن دولت چلی جاتی ہے۔ ایک نسل کے پاس ہے، اگلی وقت کے پاس ختم ہو جاتی ہے۔ بادشاہیاں چلی کئی سو سال کر ختم ہو گئیں۔ تو انسانی کمپیوٹر امپاسبل کو سوچتا نہیں۔ میں نہ مروں یہ کیوں سوچ آتی ہے؟ میں ہمیشہ جوان رہوں یہ سوچ کیوں آتی ہے؟ میرے پاس ہمیشہ خوشی ہو یہ سوچ کیوں آتی ہے؟ میرے اوپر بڑھاپا نہ آئے یہ سوچ کیوں آتی ہے؟ انسانی کمپیوٹر میں امپاسبل انٹر نہیں ہو سکتا۔ کبھی سوچا ہے کہ 2 اور 2 5 ہو جائیں؟ کبھی یہ خیال آتا ہے کہ 2 اور 2 5 ہو جائیں؟ کیوں؟ امپاسبل ہے۔ پھر یہ خیال کیوں آتا ہے کہ نہ مروں؟ یہ خیال کیوں آتا ہے کہ جوان رہوں؟ یہ خیال کیوں آتا ہے کہ بوڑھا نہ ہوں؟ یہ خیال کیوں آتا ہے کہ ہمیشہ خوش رہوں؟ یہ خیال کیوں آتا ہے کہ ہمیشہ میری نسلیں مالدار رہیں؟ یہ بتلاتا ہے کہ کوئی جہان اللہ نے ایسا بنایا ہے، اس کائنات کا خالق ہے۔ ان ربکم اللہ، اس کا نام ہے اللہ۔ یہ انڈیا پاکستان والے، ان کے علماء بھی اللہ نہیں کہتے، خدا کہتے ہیں۔ خدا، اللہ نے اپنا نام نہیں رکھا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا، تمہارے ساؤتھ افریقہ کے مولوی تو فتویٰ بھی بڑی جلدی لگاتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ خدا کہنا غلط ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خدا، کسی انسان نے اللہ کا نام رکھا ہے، اللہ نے اپنا نام خدا نہیں رکھا۔ اور خود آ، یہ 2 لفظ ہیں، خود آ۔ خود آ اس کو بنا دیا خدا۔ خدا کا مطلب ہے جسے کسی نے نہ بنایا ہو، لیکن اللہ نے اپنا نام بتایا، ان ربکم اللہ، میرا نام اللہ ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، میرا نام اللہ ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، میرا نام اللہ ہے۔ الف لام میم، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، ارے میرے بندو میرا نام اللہ ہے۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، میرا نام اللہ ہے۔ اللہ الذی سخر لکم ما فی السماء وما فی الارض، میرا نام اللہ ہے۔ جب آپ اللہ کہتے ہو، ایک دفعہ کہو سارے یا اللہ، پھر کہو، پھر کہو۔ جب آپ کہتے ہو اے خدا، تو آپ صرف اللہ کی ایک صفت کو پکارتے ہو جسے کسی نے نہیں بنایا۔ جب آپ کہتے ہو اللہم یا اللہ، تو اللہ کے جتنے نام ہیں ان کے ساتھ آپ اللہ کو پکارتے ہو۔ کہ تم نے جو کہا نا یا اللہ، تو اس میں الرحمن، الرحیم، الملک، القدوس، السلام، المومن، المہیمن، العزیز، الجبار، المتکبر، الخالق، الباری، المصور، الغفار، القہار، الوہاب،
الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الواجد الماجد المحيي المميت الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشید الصبور الحنان المنان. یہ سارے ناموں کے ساتھ آپ کہتے ہو یا اللہ تو اس میں یہ سارے نام ہوتے ہیں تو اللہ کو کتنا اچھا لگتا ہوگا. اللہ کہا ہو اللہ نور السماوات والارض. تو اس ساری کائنات کا بنانے والا ہے اللہ. فی ستۃ ایام خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام 6 دن. ثم استوى علی العرش عرش پر استوا. یغشی اللیل النہار دن کے اوپر رات کو لاتا ہے. یطلبہ حثیثا دن آگے آگے رات پیچھے پیچھے. الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ سب سورج چاند ستارے اللہ کے تابع ہیں. الا لہ الخلق والامر فتبارک اللہ رب العالمین. تو اس ساری کائنات کا خالق ہے اور بہترین خالق ہے. وہ جو بنانے والا ہے اس نے اس کی قیمت لگائی ہے. میں آپ سے کہوں میرا یہ کرتا $10 کا ہے تو میں زیادہ جانتا ہوں نا آپ سے. تو اللہ نے اس کائنات کی قیمت لگائی ہے جس نے بنائے. 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. دیکھو آسمان تیرے رب نے بجا. والارض بعد ذلك طحاها تیرے رب نے زمین کو بچھایا. اخرج منها ماءها ومرعاها پانی نکالا سبزہ نکالا. والجبال ارساها ساؤتھ افریقہ میں پہاڑ لگائے. ساؤتھ افریقہ میں پہاڑ لگائے. والارض وما طحاها ونفس وما سواها یہ سارے آیات بتاتی ہیں کہ بنانے والا اللہ. اور ابھی ڈربن میں جو انڈین اوشن میں دیکھ کر آیا ہوں تو میرا اللہ کہتا ہے هو الذی سخر البحر تیرے اللہ نے بنایا. میں نے کافی پڑھا کہ سمندر کیسے بنے سب بکواس ہے کوئی لاجک نہیں. اور ہمارے پاس ایک ہی لاجک ہے زبردست. هو الذی سخر البحر تیرے اللہ نے سمندروں کو بنایا اور ان کو اپنے تابع کیا. تیرے اللہ نے زمین کو بچھایا. تیرے اللہ نے آسمانوں کو اٹھایا. اس میں پلر کوئی نہیں لگائے, اس میں گارڈر کوئی نہیں ڈالے, اس میں بیم کوئی نہیں ڈالی. اور اتنی بڑی چھت ہے نہ وہ ٹوٹتی ہے نہ وہ کڑکتی ہے نہ وہ کریک ہوتی ہے. تو اللہ کو تو زیادہ پتہ ہے. اَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْدَارَهَا في 4 أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. یہ ساری کائنات میں نے. والأنعام خلقها اور بھی لے لو. تمہارے یہاں تو جنگل میں جانور بہت ہوتے ہیں. والانعام خلقها لکم فیہا دفء ومنافع ومنها تأکلون. اور پرندے بھی اللہ نے بنائے. اولم یروا الی الطیر فوقهم صافات ویقبضن ما یمسکہن الا الرحمن انہ بکل شیء بصیر. گائے کے بھینس کے بکری سے اڑنے سے دودھ میرے اللہ نے نکالا. نخرجکم من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین. پھل بھی میرے اللہ نے بنائے. انظروا الى ثمره اذا اثمر وینعه ما لکم ان تنبتوا شجرها االہ مع اللہ. تو یہ میں نے تھوڑا سا نقشہ بتایا قرآن سے کہ بنانے والا اللہ ہے. وہ اس کی قیمت کیا لگاتا ہے. کہتا ہے وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. کہ یہ کچھ بھی نہیں, دھوکہ ہے کچھ بھی نہیں. اس اور واضح کر کے بتاؤں. کسراب بقیۃ یحسبہ الظمآن ماء. یہ ساری دنیا
या मैं अभी डरबन, मैं अब तीसरी चौथी दफा आ रहा हूँ, सबसे पहले 91 में आया था मैं। तो उस तरफ का इलाका कोस्ट का बड़ा खूबसूरत है। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि ये सब कुछ जो तुम्हें नजर आ रहा है ऐसा है जैसे तुम रेत के सामने खड़े हो जाओ, तो ऊपर से सूरज हो तो तुम्हें पानी नजर आएगा। आता है ना, हमारे यहाँ तो चूंकि काफी ऐसे हैं सहरा, तो हमें तो ये आंखों से देखा हुआ, फिर मैं अरबों के सहरा में भी गया हूँ, वहां भी आंखों से देखा, लगता है पानी है, फिर आगे जाओ वो पानी आगे चला जाता है, फिर आगे जाओ वो पानी आगे चला जाता है। वो तो उस सूरज की शुआएं रिफ्लेक्ट कर रही हैं रेत से। तो एक अनपढ़ कहता है ओए ये पानी है, मुझे पीना है। दूसरा कहता है वो पानी नहीं है, धोखा है। वो कहता है तू मुझे पानी से रोकता है, तू हसद करता है मेरे साथ, तू मुझे पानी से रोकता है, मैंने पानी पीना है। कहता जा फिर मर खप। वो जाता है पानी और आगे जाता है, वो जाता है पानी और आगे जाता है, वो जाता है पानी और आगे जाता है, यहाँ तक कि प्यासा गिर के मर जाता है। मेरे अल्लाह ने मेरे रब की कसम इस सारी दुनिया को कहा है रेत के ऊपर पानी धोखा है, इसकी जिंदगी भी धोखा है, इसकी इज्जत भी धोखा है, इसकी जिल्लत भी धोखा है, इसकी बादशाही भी धोखा है। तो कहता है ये दुनिया तो चंद दिन की है और इसकी कीमत भी कोई नहीं है। और मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह के नजदीक मच्छर के पर के बराबर नहीं है, विंग ऑफ मॉस्किटो उसके बराबर दुनिया नहीं है। अच्छा, और फिर अल्लाह ने मौत लगाई है इसमें, तो उसी अल्लाह ने हमें खबर दी है कि मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लो, एक कॉन्ट्रैक्ट कर लो। अब्दी अंता तुरीद व अना उरीद, मेरे बंदे एक इरादा तू करता है मैंने ये करना है, वो अना उरीद एक इरादा मैं करता हूं। वला यकूनु इल्ला मा उरीद, और होता वो है जो मैं चाहता हूं। तुम प्रोग्राम बना रहे हो कि कल मैंने अपनी फैक्ट्री में जाना है और ये करना है वो करना है, और रात को तुम्हारी डेड बॉडी जाके कब्र में पड़ी होती है। तुम कहते हो कि मैंने कल अमेरिका जाना है और अल्लाह ना करे फॉलेज से अपने बिस्तर पे गिरे पड़े होते हो। तो वला यकूनु इल्ला मा उरीद, यहां हमेशा वही होता रहेगा जो तेरा अल्लाह चाहेगा। तो एक डील करो मेरे साथ, एक डील करो। वो डील क्या है? फ़इन सल्लमत ली फ़ीमा उरीद, इस छोटी सी जिंदगी में जो मैं कहता हूं वो कर दो, जो मैं कहता हूं वो कर दो। कफ़ई तो कफ़ी मा तुरीद, फिर जो तुम चाहते हो ना वो सब कुछ मैं कर दूंगा। फ़इन सल्लमत ली फ़ीमा उरीद, जो मैं कहूं वो कर दो और वो मेरे नफे का होगा, और जिससे रोकूं रुक जाओ वो मेरे नफे का होगा। मुझे एक मानो ये मेरे नफे की चीज है, मेरे नबी मोहम्मद को आखिरी रसूल मानो ये मेरे नफे की चीज है, नमाज पढ़ो ये मेरे फायदे के लिए, रोजा रखो, हज करो, ज़कात दो ये मेरे नफे के लिए है, शराब ना पियो, जिना ना करो, पत्थर की पूजा ना करो, कत्ल ना करो, जुल्म ना करो, सूद ना खाओ, ये मेरे फायदे के लिए अल्लाह ताला फरमा रहा है, सारे फायदे मेरे लिए हैं। तो मेरा अल्लाह कह रहा है जो कहूं कर दो, फिर क्या होगा? कफ़ई तो कफ़ी मा तुरीद, जो चाहोगे वो सब कर दूंगा, लेकिन उसके लिए मरना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। क्योंकि यहां अगर सब कुछ मिल भी जाए फर्ज करो, तो मौत का क्या करे? 91 में मैं आया था ना, तो डरबन में बड़ा खूबसूरत है, एक नौजवान कहने लगा मौलाना साउथ अफ्रीका जन्नत है, जन्नत है। मुझे आज तक अल्फाज गूंज रहे हैं। मैंने कहा ऐसा करो मैं भी आ जाता हूं, लेकिन एक मेरे साथ मुआहदा करो ना, तुम मरोगे ना मैं मरूंगा। तो फिर मैं भी पाकिस्तान से साउथ अफ्रीका आ जाता हूं, और अगर मर ही जाना है तो फिर पाकिस्तान साउथ अफ्रीका में क्या फर्क है? तू भी मिट्टी में जाएगा, मैं भी मिट्टी में जाऊंगा। तो ये जन्नत कैसे बन सकती है? जन्नत बना ली, जन्नत संवार ली, सोने चांदी के घर बना लिए, लेकिन मौत का क्या करें? किधर छुप कर जाए? ऐनमा तकूनु युदरिक्कुमुल मौत वलो कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, इन्ना अजलल्लाह इज़ा जाअ ला युअख्खर, ऐनमा कुंतुम युदरिक्कुमुल मौत। क्या करें? जन्नत तो है, लेकिन ये खबीस मिट जाने वाली जन्नत है, उठा के हमें नीचे डाल देगी। तो इसका किसी के पास क्या हल है? मरे नहीं, बुढ़ापा ना आए। हम चाहते हैं मैं मरूं, मेरी औलाद ना मरे, चाहते कि नहीं? हर बाप चाहता है कि नहीं चाहता?
मैंने जवान बेटे को कब्र में उतारा हुआ है, जो मेरे मन में है वो मैं आपको दिखा तो नहीं सकता। जो एक मौत तक का गम मेरे अंदर लग गया है, जैसे वो लकड़ी को दीमक लग जाता है, तो मुझे वो गम का दीमक लगा हुआ है। ये हंसता चेहरा तो आपके लिए है। तो मैंने कब चाहा था मेरा जवान बेटा मेरे हाथों से कब्र में जाए, चला गया। तो फिर क्या हो कि हर चाहा पूरा हो? तो अल्लाह फरमाते हैं ये चंद साल मेरी मान ले, और फिर जब क़यामत का दिन आएगा, फरीकुन फिल जन्नति व फरीकुन फिस सईर फअम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनिही फयक़ूलु उक़्रऊ किताबिया, जिसके सीधे हाथ में पेपर आएगा वो नारा लगाएगा। उस नारे को कुरान ने अल्फाज बना दिया। सलमान हो वो कहेगा ओए 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 ओ हो। वो सारे कहेंगे वो क्या हुआ? का इक़्रऊ किताबिया, इक़्रऊ किताबिया, वो मेरा पेपर पढ़ो, मेरा पेपर पढ़ो, मैं पास हो गया, मैं पास हो गया। वो कैसे पास आया तू? इन्नी ज़ननतु अन्नी मुलाकिन हिसाबिया, मुझे पता था मेरा हिसाब होना है, मैं तैयारी करता रहा। नकल तो चल नहीं सकती, यहीं से तैयारी करके जाना है। वो अम्मा मन ऊतिया किताबहु बिशिमालिही, जिसके उल्टे हाथ में आया कहेगा या लैतनी लम ऊत किताबिया, हाय ये पेपर आ गया। वलम अदर मा हिसाबिया, हाय मुझे हिसाब का पता नहीं था। या लैतहा कानतिल क़ादिया, अरे मौत आजा मुझे मार दे, अरे मौत आजा मुझे मार दे। ये दो तरह के आप देखेंगे। वजूह यौमइज़िन नाइमा लिसअयहा रादिया फी जन्नतिन आलिया, वजूह यौमइज़िन मुस्फिरा ज़ाहिका मुस्तबशिरा व वजूह यौमइज़िन अलैहा ग़बरा तरहक़ुहा क़तरा उलाइका हुमुल कफ़रतुल फ़जरा। कोई काले स्याह चेहरे, कोई बदबूदार चेहरे, और कोई खुशबूदार चेहरे, और कोई रोशन चेहरे, और हंसते मुस्कुराते चेहरे, और नाचते कूदते चेहरे, और कुछ दुहाई धाड़े मारते हुए रोते हुए चेहरे। ये क़यामत के दिन दोनों तरह की पिक्चर चलेगी, दोनों तरह की मूवी नहीं चलेगी, हकीकत चलेगा। अब वो वक्त आ गया कि अल्लाह आपको वो सब कुछ देना चाहता है जो मैंने शुरू में बात की थी। मेरे नबी ने फरमाया, देखो कुरान की एक जगह में ना जन्नत और दोज़ख में जाने का बताता हूं। वसीक़ल्लज़ीना इत्तक़ौ रब्बहुम इला जहन्नम ज़ुमरा हत्ता इज़ा जाऊहा फुतिहत अबवाबुहा। जहन्नम वालों को जहन्नम में ले जाया जाएगा, जब वो करीब आएंगे तो यूं दरवाजे खुल जाएंगे और वो सारे उसमें गिरेंगे। वसीक़ल्लज़ीना इत्तक़ौ रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा हत्ता इज़ा जाऊहा व फुतिहत अबवाबुहा, हत्ता इज़ा जाऊहा जहन्नम फुतिहत अबवाबुहा। जाएंगे जैसे ये ऑटोमेटिक दरवाजा अपने आप खुलता है, ऐसे खुलेंगे। लेकिन हत्ता इज़ा जाऊहा, जब जन्नत पर जाएंगे तो आगे आ गया वाव व फुतिहत, और फिर दरवाजे खुलेंगे। इसका क्या मतलब है? इसको हदीस पाक ने वाज़े किया है, जब जन्नती मर्द औरत सब जन्नत के दरवाजों पर पहुंच जाएंगे तो दरवाजे बंद होंगे। जहन्नुम के 7 दरवाजे हैं, लहा सबअतु अबवाब, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, और जब जाएंगे तो दरवाजे बंद होंगे। अरे क्या करें, दरवाजे बंद, तो 2 चश्मे उबल रहे होंगे, कोई नहीं उन्हें कहेगा, अपने आप अल्लाह की तरफ से उनको ख्याल आएगा और एक से पानी पिएंगे। जब वो पानी पिएंगे तो सीने में सारा गुस्सा और हसद और बुग़्ज़ और नफरत और खोट और इंतकाम, ये सब साफ हो जाएगा। वनज़अना मा फ़ी सुदूरिहिम मिन ग़िल। अब ये पानी नीचे जाएगा मैदे में तो पखाना खत्म, पेशाब खत्म, थूक खत्म, बलगम खत्म, बीमारी खत्म, बुढ़ापा खत्म, हर गंदगी खत्म हो जाएगी। हजारों लीटर पानी पी जाएगा, पेशाब नहीं आएगा। हजारों किलो खाना खा जाएगा, पखाना नहीं आएगा। दूसरे चश्मे से वजू करेंगे तो चेहरे रोशन, दाढ़ी गायब, 4 सिफ्तें पैदा हो जाएंगी। अमरत दाढ़ी नहीं होगी। 15-16 साल के बच्चे की उम्र जैसे होती है ऐसे। जिन्होंने यहां नहीं रखी उनको शायद रखनी पड़ जाए, जिन्होंने रखी हुई है उनकी तो यकीनन गायब हो जाएगी।
अमरद दाढ़ी नहीं होगी, अजरद जिस्म पे बाल नहीं होंगे, सिर्फ सर के बाल, ये बाल और ये बाल और यहाँ हल्के हल्के बाल, बाकी पूरा जिस्म शीशे की तरह साफ होगा। कितने लोग हैं बेचारे जिनको इतने बाल होते हैं, वो शर्म की वजह से अपना कुर्ता भी नहीं उतारते, ये लगता है पता नहीं जंगल उगाया ऊपर। तो अजरद साफ शफाफ, जियाद सर के बाल ऐसे ऐसे, जैसे समंदर की लहरें नहीं ऐसे ऐसे होती, ऐसे सर के बाल ऐसे 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 होते होते यहां तक आएंगे, यहां तक, यहां तक। मुकहलीन, और सुरमा आंखों में खुद ब खुद लगा हुआ होगा। और अला कामत आदम, आदम अलैहिस्सलाम का कद हो जाएगा कितना? 130 फीट, 130 फीट। हजरत हव्वा का कद भी 130 फीट था। अम्मा हव्वा और अब्बा आदम 130 फीट थे। ये तो जमाने के साथ हम रगड़े खाते 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 छोटे होते 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 ये हो गए, आगे चल के और भी छोटे हो जाएंगे। ये कद वापस मिलेगा। जन्नत की हूर का कद भी है 130 फीट। एक जगह मैंने बयान किया, एक नौजवान कहने लगा मौलाना ये इतना बड़ा कद बुरा नहीं लगेगा, हमें तो यही ठीक है, खुशबाश है। मैंने कहा चलो ठीक है, तुम इसी कद में चले जाना, जन्नत की हूर तुम्हें उठा के जेब में डाल लेगी। और वो 100 जोड़े पहनती है, एक भी नहीं 100। और तू अंदर में खप डाल रहा, मुझे निकाल मुझे निकाल, वो कहेगी तो है कहाँ, मुझे तो नजर ही नहीं आ रहा। और तूने तो उसके साथ लव करनी, और वो तुझे में गोद में लोरियां देगी, मेरा मेरा लाडला, मेरा लाडला शौहर। 130 फुट और 5 फुट है। ये तो आप तकरीबन सबको पता होगा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम दुनिया में सबसे खूबसूरत इंसान थे, लेकिन ये शायद ही किसी को पता हो कि दुनिया की सबसे हसीन औरत हजरत हव्वा थी। दुनिया की सबसे हसीन औरत हजरत हव्वा थी। इसी कद पे अल्लाह लौटाएगा। आदम अलैहिस्सलाम का कद, यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न व जमाल, दाऊद अलैहिस्सलाम की सुरीली म्यूजिकल वॉइस, ईसा अलैहिस्सलाम की जवानी 33 पर फुल स्टॉप लग जाएगा। 33 बिलियन साल के बाद भी आप 33 के होगे। और पांचवी चीज सबसे आला, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक। जो तुम दुनिया में चाहते थे ना, अब वो होने लगा है। अब वो एक शख्स बदसूरत हो जाता है, काला हो जाता है, वो बेचारा शीशा भी शर्मा के देखता है। लेकिन एक हदीस सुनाऊं आपको। एक काला आया, या रसूलुल्लाह मेरा रंग भी काला है और पैसा भी कोई नहीं, पकड़ूं तो अगर मैं ईमान ले आऊं तो मैं आपके साथ जन्नत में जा सकता हूं। आपने फरमाया तू अपने काले होने का गम न कर, जब तू मेरा साथ देगा ना तो जन्नत में अल्लाह तुझे इतना खूबसूरत बनाएगा कि तेरे चेहरे की लाइट 1000 साल तक दिखाई देगी। 1000 किलोमीटर नहीं, 1000 माइल नहीं, 1000 साल, 1000 ईयर तेरे चेहरे की लाइट जाएगी, तो इतना खूबसूरत बना दिया जाएगा। तो क्या क्या सिफतें हो गई? अमरद, दाढ़ी कोई नहीं, अजरत, जिस्म पे बाल कोई नहीं, सर के ये और ये, ठीक। अकहल, आंखों में सुरमा, जियात, बाल नीम घुंघरियाले, नीम घुंघरियाले। और फिर आदम अलैहिस्सलाम का कद, यूसुफ अलैहिस्सलाम की खूबसूरती, दाऊद अलैहिस्सलाम की मीठी जुबान, ईसा अलैहिस्सलाम की जवानी और हुजूर पाक के अखलाक, ये हो गए। अब कहेंगे भाई अंदर चलो। अंदर कैसे जाएं, तो ताले लगे हुए। तो ये सारे लोग जाएंगे। और जो ईमान वाली औरत है उसके बाल यहां से चलेंगे, और वो भी 130 फुट हो जाएगी ना, यहां से चलेंगे और पांव की एड़ी तक आएंगे, यहां तक आएंगे, यहां से चलेंगे यहां तक आएंगे। यहां तो बेचारियों के सर में जुएं पड़ी रहती हैं, वहां अल्लाह मोतियों से सजा देगा, मोतियों से, हीरों से, जवाहरात से। और फिर कहेंगे भाई चलो जन्नत में चलें। कैसे चलें? अबाना आदम, आदम अलैहिस्सलाम हमें जन्नत में ले जाओ, आप हमारे अब्बा हैं। कहेंगे बेटो मैंने तो निकलवाया था, किसी और से बात करो। अब ये सारा काफिला चल रहा है। आदम अलैहिस्सलाम, फिर शीस अलैहिस्सलाम, फिर इदरीस अलैहिस्सलाम, फिर नूह अलैहिस्सलाम, फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम, या इसहाक अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, यूशा अलैहिस्सलाम, यूनुस अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम,
सुलेमान अलैहिस्सलाम, यहया अलैहिस्सलाम, ज़करिया अलैहिस्सलाम, लूत अलैहिस्सलाम, शुएब अलैहिस्सलाम, सालेह अलैहिस्सलाम, सारे नबी कहेंगे ना बैना ना बैना ना बैना। आखिर जब ये चलते 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 आएंगे ना हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास, तो वो कहेंगे देखो भाई ये मैं भी नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हें पता बता सकता हूँ कि कौन खुलवाएगा। बाकी कोई नबी ये नहीं कहेगा, पता सबको होगा। वो कहेंगे जी पता ही बता दे, तो कहेंगे जाओ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बरलाने वाला, वो व अहसन मिन कलम तरक़त ऐनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसाउ खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नक क़द खुलिक़त कमा तशाउ नसीमा जानबे बतहा गुज़रकुन ज़ अहवालम मुहम्मद रा खबरकुन नबुरई जान मुश्ताकम दराजा फिदाए रोज़ा ए खैरुल बशर कुन या खैर मन दुफनत फिल क़ाए अअज़मुहु फताब मिन तीबिहिन अल क़ाउ वल अक़म नफ्सुल फ़िताउ लिक़ब्रिन अंत साकिनुहु फ़ीहि अल अफ़ाफ़ु व फ़ीहि अल जूद वल करम अंत अश-शफ़ीउ अल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु अला सिरात इज़ा मा ज़ल्लत अल क़दम व साहिबाक ला अंसाहुमा अबदा मिन्नी अस्सलामु अलैकुम मा जरल क़लम। ये सब मेरे नबी की तारीफ है जो मैंने आपको अरबी में भी, उर्दू में भी, फारसी में भी सुना दी। अंग्रेजी में कोई है ही कोई नहीं, या मुझे नहीं आती। हाँ, कौन है ये मेरे नबी का, ये मेरा नबी है। ये कौन है? ये हाशमी है, ये अरबी है, ये मुदरी है, ये कुरैशी है, ये अदनानी है, ये कहतानी है। ये कौन है? ये सबसे अहसन है, सबसे हसीन है, सबसे अजमल है। ये कौन है? ये मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है, बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मुनाफ बिन कुसै बिन किलाब बिन मुर्रा बिन कअब बिन लुबई बिन गालिब बिन फहर बिन मालिक बिन नज़र बिन किनाना बिन खुज़ैमा बिन मुदरिका बिन इलियास बिन मुदर बिन नज़ार बिन मुअद बिन अदनान बिन अवद बिन हमैसा बिन सलामान बिन औस बिन बौस बिन कमवाल बिन उबई बिन अवाम बिन नाशिद बिन हिज़ा बिन बलदास बिन यदलाफ बिन ताबिख बिन जाहिम बिन नाहिश बिन माखी बिन ऐफी बिन अबकर बिन उबैद बिन दुआ बिन हमदान बिन संबर बिन यथरबी बिन यहजन बिन यलहन बिन इरवा बिन ऐदी बिन ज़ीशान बिन ईसर बिन अकनाद बिन ईहाम बिन मुक़स्सिर बिन नाहिद बिन ज़ारह बिन समी बिन मज़ी बिन उवद बिन हिराम बिन क़ीदार बिन इस्माईल बिन इब्राहीम बिन आदर बिन नाहूर बिन सरूज बिन रऊब बिन फ़ाइज बिन आबिर बिन अफ़रख़शाद बिन साम बिन नूह बिन लामिक बिन मतूशाली बिन इदरीस बिन यरिद बिन मलहल बिन क़ीनान बिन आनूश बिन शीस बिन आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। लिवाउल हम्द बियदी यौमल क़ियामह। मेरे नबी कह रहे हैं अल्लाह का झंडा मेरे हाथ में होगा। कुल्लुन नास तहत लिवाई आदम व मन सिवाहु। सारी दुनिया के इंसान और नबी मेरे झंडे के नीचे होंगे। अना क़ाइदुहुम इज़ा वफ़दू। मैं सबसे आगे चलूंगा, सारी दुनिया मेरे पीछे चलेगी। मुस्लिम भी नॉन मुस्लिम भी मेरे पीछे चलेंगे। अना शाफ़िउहुम इज़ा हुबिसू। जमीन उनको पकड़ लेगी, मैं सिफारिश करूंगा, उनके पांव छूटेंगे। अना मुबश्शिरुहुम इज़ा अयसू। वो दोज़ख को देख के नाउमीद हो जाएंगे, मैं बशारतें दूंगा, मैं बशारतें दूंगा। मफ़ातिहुल जन्नत बियदी यौमल क़ियामा। जन्नत की चाबी मेरे पास होगी। इलैया। जन्नत की चाबी मेरे पास होगी। इन्नल जन्नत हुर्रिमत अलल अंबिया हत्ता अदखुलहा। हराम है नबियों पर जब तक मैं न जन्नत में चला जाऊं। हराम है उम्मतों पर जन्नत जब तक मेरी उम्मत न चली जाए। अब आप तशरीफ ले जाएंगे और आप कहेंगे अना लहू या रसूल अल्लाह, दरवाजा खुलवाएं। आप सजदा करेंगे, मेरा अल्लाह कहेगा सर उठा, सल तोता इश्फा तो शफ़ा, मांग मिलेगा, सिफारिश कर पूरी करूंगा। या अल्लाह दरवाजा खोल। मेरा रब कहेगा आप बिस्मिल्लाह करें, आप बिस्मिल्लाह करें। तो अल्लाह ताला आपने कहा अना अव्वल मन उक़ाक़िउ बाबल जन्ना। मैं सबसे पहले ये करूंगा। इसको क़ा क़ा कहते हैं। तो अंदर से आवाज आएगी कौन? तो आप फरमाएंगे मोहम्मद रसूलुल्लाह। कहेंगे मरहबन बि रसूलिल्लाह। और ऐसे दरवाजे खुलेंगे और आपने फरमाया सबसे पहले मेरी उम्मत दाखिल होगी, सबसे पहले मेरी उम्मत दाखिल होगी। और उससे पहले की बिलाल की शान बताऊं कि जब आप कहेंगे या अल्लाह दरवाजा खोल, अल्लाह कहेंगे इब्तद तुम चाबी लगाओ, तो जन्नत से एक सवारी आएगी, आप उसके ऊपर ऐसे बैठ जाएंगे। उस सवारी का ही जैसे ही है ना, उस सवारी की जो रस्सी है, जो उसका जो स्टीयरिंग है, वो ऐसे नीचे गिर जाएगा। नीचे गिरने का मतलब है इसको आप खुद ड्राइव नहीं करेंगे, बल्कि कोई आपका ड्राइवर आएगा। और बड़ों का ड्राइवर भी बहुत बड़ा बन जाता है ना, कि नहीं? जब ये रस्सी नीचे गिरेगी
تو सबको पता चल जाएगा कोई आएगा, खुद मेरा नबी नहीं कोई आएगा, तो ये हाल होगा सबको। ऐसे पंजों के ऊपर कौन कौन, देखो भाई कौन आता है, ऐसे सस्पेंस पैदा हो जाएगा, पिन ड्रॉप साइलेंट और सस्पेंस, सांस रुके हुए, कौन कौन कौन। तो मेरे रब की आवाज आएगी, बिलाल हबशी को बुलाओ। बिलाल न काली को देखे न गोरी को देखे, पिया जिसको चाहे सुहागन वही है। बिलाल, हमने कहा बिलाल मेरी सवारी की रस्सी पकड़ के मेरे आगे चलेगा, दरवाजा खुलेगा, आप दाखिल होंगे, सवारियां मौजूद होंगी, और हर एक अपनी अपनी जगह पर जब ठहर जाएगा, करार पकड़ जाएगा, तो अब वो सुनो, अब अल्लाह का फरिश्ता ऐलान करेगा, वो जो तुम जो रोशनी में, या पता नहीं आप कहां कहां से आए बैठे हो, वो जो तुम जोहानिसबर्ग में कहते थे मौत ना आए, तो सुनो, इन्न लकुम अन तहयौ फला तमूतु अबदा, अब तुम कभी नहीं मरोगे, कभी नहीं मरोगे। अच्छा, बिलियन साल के बाद भी हाँ, ट्रिलियन साल के बाद भी हाँ, करोड़ों ट्रिलियन साल के बाद भी हाँ, अब मौत नहीं आएगी। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन लंबी उम्र दे रहे हो तो बुढ़े ना हो जाएं। तो दूसरा ऐलान होगा, इन्न लकुम अन तशिब्बु फला तहरमु अबदा, अब हमेशा जवान रहो, हमेशा जवान रहो, कभी बूढ़े नहीं होगे। कितने बड़े बड़े पहलवान बेचारे व्हील चेयर पे आ जाते हैं, लाठी पकड़ के चल रहे होते हैं। हमारा पहलवान था भोलू, उसको वो वर्ल्ड चैंपियन था, भोलू नाम उसका, अब्दुल रशीद था। इंडिया में जो गामा गुलाम मोहम्मद वर्ल्ड चैंपियन बना था, उसका ये भतीजा था, तो वो वर्ल्ड चैंपियन बना था। मैंने अपनी अल्लाह की कसम आंखों से देखा, वो ऐसे पड़ा हुआ था और उठ नहीं सकता था, उठ नहीं सकता था। अल्लाह कहेगा, तशिब्बु फला तहरमु अबदा, अब हमेशा जवानी है, बुढ़ापा नहीं आएगा। फिर ख्याल आएगा, अच्छा ये अल्लाह जवानी तो दे दी और बीमारी आ गई, तो फिर क्या करेंगे, जवानी तो खाक में गई। तो तीसरा ऐलान होगा, इन्न लकुम अन तसिह्हु फला तस्कमु अबदा, अब हमेशा सेहतमंद रहो, बीमारियां खत्म, दुख खत्म, गम खत्म। ऐनक लग रही है, जरूरत नहीं है, कानों में वो आले लग रहे हैं, जरूरत नहीं है, सेहतमंद रहो। ये खाना है, ये नहीं खाना, भाई जिब्रील मुझे कोई डाइट प्लान दे दो, मैं क्या खाऊं क्या ना खाऊं, मुझे कहीं शुगर ना हो जाए, तो मुझे कोई डाइट प्लान दे दो, डाइट चार्ट दे दो, और मुझे कोई जिम का पता भी बता दो, मैंने जिम भी करना है ताकि मैं सेहतमंद रहूं। तो मेरा अल्लाह कहेगा, अरे वो सब खैर, तसिह्हु फला तस्कमु अबदा, जो खाना है खाओ, जो पीना है पियो, जो करना है करो, हमेशा सेहतमंद, बीमारी नहीं आएगी। एक और मजे की बात, नींद कोई नहीं जन्नत में, नींद कोई नहीं, कभी नहीं सोओगे। आदमी सोता है जब थक जाता है, वो थकन तो है नहीं, लिहाजा नींद कोई नहीं। और कभी थक के ऐसे करता है, कभी करता ऐसे करता है, ना ये होगा ना ये होगा ना ये होगा, ऐसे जवान, हर वक्त मजा, पूरी 440 जो है ना इलेक्ट्रिक वोल्ट, वो तुम्हारे अंदर चल रही होगी, कभी बीमार नहीं होगे। सारी डॉक्टरियां खत्म, सारे ऑपरेशन खत्म, सारे अस्पताल खत्म, और ऐसी सेहत है, पेशाब नहीं, पखाना नहीं, टॉयलेट कोई नहीं जन्नत में, वॉशिंग रूम कोई नहीं जन्नत में, लॉन्ड्री कोई नहीं जन्नत में, एक छोटा सा बैग भी जन्नत में कोई नहीं, कोई बैग कोई नहीं। क्या जी मेरी जिंदगी गुजर गई सफरों में, कुछ 40 साल हो गए मुझे, कभी अर्श पर कभी फर्श पर, कभी उनके दर कभी दर बदर, कभी आशिकी तेरा शुक्रिया, मैं कहां कहां से गुजर गया, कभी रास्तों में तन्हा, कभी हूं वरूद सहरा, मैं जुनूं का हम सफर हूं, मेरा कोई घर नहीं है, मैंने पूरी दुनिया, मेरे अल्लाह ने मुझे यूं फिराई 2 दफा ऐसे राउंड द क्लॉक, 100 से ज्यादा मुल्कों में अल्लाह ने मुझे फिराया,
कभी बैग इधर है, कभी बैग इधर है, कभी भी सर अब तो खैर उठाने वाले अल्लाह ने खादिम दे दिए। एक वो भी था जब फिरते हैं खार मीर, कोई पूछता नहीं, इस आशिकी में इज्जत सादात भी गई। कभी बसों की छत पे चढ़े हुए हैं, कभी उनकी सीढ़ियों पे लटके हुए हैं, कभी थर्ड क्लास के डब्बे में सफर कर रहे हैं, बैठने की जगह कोई नहीं, टॉयलेट के अंदर खड़े होकर सफर किए हुए हैं। तो बैग खुद इतना सा बैग भी कोई नहीं, छोटा सा किचन भी कोई नहीं है, छोटा सा किचन भी कोई, बस तेरी ख्वाहिश ही सब कुछ है, तेरी ख्वाहिश ही सब कुछ है। कोई टेक्सटाइल का निजाम कोई नहीं, कोई प्रिंटिंग कोई नहीं, कोई डिजाइनर कोई नहीं। एक दरख्त है, उसका नाम है तूबा। तूबा छोटा सा है, कितना छोटा है, और हर जन्नती को मिलेगा, हर जन्नती को मिलेगा, लेकिन अपने अपने दर्जों के मुताबिक उसकी कंडीशन अलग अलग होगी। वो कितना है, ये तूबा का तना है ये, ठीक है। मेरे नबी ने फरमाया यहां से एक ऊंट दौड़े 5 साल की उम्र वाला, जल्द 5 साल में ऊंट भरपूर जवान होता है, और वो दौड़ता रहे 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 दौड़ता रहे, यहां तक कि बूढ़ा हो के गिर के मर जाएगा, इसके गिर्द चक्कर नहीं लगा सके। ऊंट की बड़ी उम्र होती है, सुभान अल्लाह, इतना बड़ा एक दरख्त ऐसा होगा, एक, उसका नाम है तूबा। वो डिजाइनर भी है, वो दर्जी भी है, वो टेक्सटाइल भी है, वो सब कुछ है। उस पर फूल लगे हुए हैं, बहुत बड़े बड़े फूल। आप ये एक कुर्ता नहीं पहनोगे, एक ट्राउजर नहीं पहनोगे, अल्लाह आपको 100 जोड़े पहनाएंगे, 100 जोड़े। तो उनको उठाएंगे कैसे? अभी एक जोड़े में गर्मी लग रही है, उठाएंगे कैसे? लाइट का कोई वेट होता है? लाइट का कोई वेट होता? वो सामने देखो, वो पीछे लगी हुई, कोई उसका वेट है? इसको नूर कहते हैं। अल्लाह जन्नत के कपड़ों का धागा नूर से बनाएगा, नूर से, और नूर का वेट कोई नहीं होता, समझ रहे हो? नूर का वेट नहीं होता। तो 100 जोड़े होंगे। और अब मेरे कुर्ते के नीचे बनियान है, पता नहीं मैंने मैली पहनी है या साफ पहनी है, आपको क्या पता? आपको दिखाने के लिए कुर्ते को मैंने प्रेस कर लिया, नीचे बनियान फटी हुई है। तो 100 जोड़े होंगे, और हर जोड़ा पिछले जोड़े के नजर आएगा, ऐसे 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 99 जोड़े नजर आएंगे। 100वां जोड़ा उसके जिस्म को पर्दे में ले जाएगा, और हर जोड़े के मुताबिक उसके चेहरे का मेकअप बदलता बदलता रहेगा। और आप तूबा की तरफ ऐसे देखोगे, आपके दिमाग में आएगा मेरे ऐसे कपड़े हों, ऐसे कपड़े हों, तो ठक एक रोशनी, ये कैमरों वाले, ये नहीं हमारे मोबाइल कैमरे, तो उसमें वो लेते हैं तो ऐसे रोशनी आती, ऐसे रोशनी आएगी, ठक। देखो अगर 100 जोड़े तुम खुद पहनने लगो तो इंशाल्लाह कंधे तो गए ना। 1 2 3 4 5 6 10 20 40 50 हाय मर गए, टक। अगले 100 जोड़े गायब, और नए 100 जोड़े आपके जिस्म पर। ना आपको उतारने की तकलीफ होगी, ना पहनने की तकलीफ होगी। जो आप और हम चाहते हैं ना, वो यहां नहीं हो सकता, वो वहीं होगा। यहां थोड़ी देर कड़वा घूंट भर के अल्लाह की मान लो, और जन्नत की हूर और जन्नत की ईमान वाली औरत, उसको जो अल्लाह ताला जोड़े पहनाएगा, वो 3 मील के दायरे में घूम रहे होंगे। उसका जो फ्रॉक होता है वो 3 मील के दायरे में घूम रहा होगा। वो बहुत पहले जो लेडी डियाना बेचारी मरमरा गई, उसकी शादी की वीडियो देखी थी, तो उसके पीछे वो इतना लंबा फ्रॉक का था कि वो दूर तक उसको पीछे से वो फौजियों ने उठाया हुआ था। वहां उठाना के लिए खादिमात होंगी, और 3 माइल 5 किलोमीटर में उसका फ्रॉक घूम रहा होगा, और उसके 100 जोड़े होंगे, और उसके सर के बाल यहां से चलकर पांव की एड़ी तक होंगे। और मेरे रब की कसम, सर जब वो यूं करेगी ना तो बालों को हरकत होगी, यूं करो तो जो उसके बड़े बाल होते हैं उसको हरकत होती है। जब वो यूं करेगी तो उसके बालों से रोशनियां ही रोशनियां फैल जाएंगी, और खुशबू ही खुशबू फैल जाएगी। और तुम देख, अगर मौत मर ना गई होती तो देख के मर जाते तुम, हम सब मर जाते। इतना अल्लाह ने हुस्न जमाल बख्शा है। तो अल्लाह कहेगा सेहतमंद, बीमारी कोई नहीं। अब तुम कहोगे या अल्लाह जवानी भी मिल गई,
जिंदगी भी मिल गई, जवानी भी मिल गई, सेहत भी मिल गई, अगर रैंड ना हुए तो फिर क्या करेंगे हम? ये तुम्हारी करेंसी का नाम ही अजीब है, रैंड। इसको थोड़ा सा जेर लगा दो, रिंड, तो हमारी पंजाबी में रिंड जू को कहते हैं। ये यहां तो या अल्लाह जवानी भी दे दी, जिंदगी भी दे दी, सेहत भी दे दी, टका पैसा कोई ना हो तो फिर क्या? तो अल्लाह कहेगा इन्न लकुम मन तनामु फला तबसु अबदा, जाओ मेरे बंदो हमेशा बादशाही मुबारक हो, कभी न भूख आएगी, न फक्र आएगी, न तुम्हें कोई परेशानी आएगी, हमेशा की बादशाही है। वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसकुम वलकुम फीहा मा तद्दऊन, जो चाहोगे मिल जाएगा। जन्नत में जो चार आप नहरें नहरें कहते हो ना, नहर अरबी में दरिया को कहते हैं। एक पानी का दरिया, एक दूध का दरिया, एक शराब का दरिया, एक शहद का दरिया, और बाकी चश्मे रहीक है, सलसबील है, मईन है, जंजबील है, काफूर है, और सबसे आला चश्मे का नाम है तस्नीम। तस्नीम कहते हैं ऐसे ऊपर नीचे, समंदर की लहरें ऐसे ऐसे होती हैं। ऊंट की कोहान को निसाम कहते हैं। वो चश्मा ऐसे ऐसे लहरों से चलेगा, लेकिन वो जमीन पे नहीं चलेगा, वो यहां चलेगा, नीचे कोई चीज नहीं है, वो हवा में चल रहा है, ऐसे हवा में चल रहा है। ये सबसे मजे का, इसका एक कतरा 7 समंदर में डाल दो, सारे मीठे हो जाएंगे। एक कतरा, एक ड्रॉप। यहां की शराब पियो तो पेशाब भी अंदर निकल रहा है, उल्टियां भी कर रहे हैं, पखाने भी निकल रहे हैं, ना माँ का पता है ना बीवी का पता है, उल्लू के पट्टे। और वहां अल्लाह शराब पिलाएगा, वसक़ाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा। आ मेरा बंदा मेरे हाथ से पी, देख मैं पिलाता हूं, मजे आ गए। तो जाओ हमेशा की बादशाही मुबारक हो। आखिरी जन्नती को अल्लाह 72 बीवियां अता फरमाएगा, 72, और आला से आला फिरदौस वालों के लिए कोई तादाद नहीं है। और ये 72 का मतलब एंड नहीं है, हर जुमे अल्लाह का दीदार होगा, और हर जुमे एक नई बेगम आपको अता की जाएगी। जो आखिरी जन्नती जहन्नम में, आखिरी जहन्नमी जो सबसे आखिर में जन्नत में जाएगा, उसका नाम होगा जुहैना। तो वो इतने थोड़े ईमान वाला होगा कि ना नबियों की सिफारिश से निकलेगा, ना हमारे नबी की सिफारिश से निकलेगा, ना अल्लाह खुद निकालेगा, वो निकलेगा। वो इतने थोड़े ईमान वाला होगा। जब उसको वो अल्लाह ताला जन्नत के दरवाजे पर पहुंचाएगा तो उससे कहेगा, तुम्हें पता है मैं तुम्हें क्या दे रहा हूं? क्या जी क्या? का दुनिया से 10 गुना बड़ी जन्नत दे रहा हूं। ये दुनिया 24,000 किलोमीटर वाली। वो कहेगा या अल्लाह मजाक तो ना कर, कहेगा या अल्लाह मजाक तो ना कर, मैंने तो कोठा ही काफी है, दोज़ख से निकला हूं। वो कहेगा नहीं मजाक नहीं, चल अंदर। जब जाएगा तो आगे उसका नौकर खड़ा होगा, वो इतना खूबसूरत होगा। हमारे पंजाब की सकाफत है कि हम जब किसी अपने बड़े को मिलते हैं ना, थोड़ा सा झुक के मिलते हैं। और हमारे जो देहात की सकाफत है, हम उनके गोडों को हाथ लगाते हैं ऐसे, ये हमारी तहजीब है। हम गोडों को हाथ लगाते हैं अपने बड़ों की, यानी ये एक उस बड़े की इज्जत के लिए हम ऐसे करते हैं। तो वो ऐसे होगा, तो वो कहेगा हुजूर क्या कर रहे हैं? वो कहेगा तुम फरिश्ते हो, तेरे सामने झुक रहा हूं। वो कहेगा बाबा मैं आपका नौकर हूं, फरिश्ता नहीं हूं। और आपको पता है मेरे जैसे 80,000 नौकर आपके पास हैं। यहां आपको मुफ्त में थोड़ी थोड़ी तनख्वाहों पे कितने लोग मिल रहे होते हैं। इनको अच्छी तनख्वाह दिया करो, इनके गम में शरीक हुआ करो, इनकी खुशी में शरीक हुआ करो, इनके बीमारों को देखा करो, इनका हाल हवाल लिया करो। ज़कात तो ईमान वालों के लिए है, सदका तो सबके लिए है। इनका सदका, इधर देखो इनके टीन के छतें पड़ी हुई हैं और टीन के घरों में रह रहे हैं, और तुम यहाँ कैसे आलीशान घरों में रह रहे हो। इनका ख्याल किया करो। गरीब एक नस्ल है, चाहे मुस्लिम है चाहे काफिर है, उस पर रहम करना मेरे अल्लाह को पसंद है। चाहे वो बुत परस्त है और चाहे वो खुदा परस्त है, वो अल्लाह को पसंद है उसके गरीब बंदों पे खर्च करना। तुम्हें तो थोड़ी थोड़ी तनख्वाहों में, हमारे तो पाकिस्तान में बड़ी तनख्वाहें हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हम देते हैं। तो आप लोग भी तरखाया ना करो भाई, चलो कम से कम में ले लो। ये जितने ताजर हैं ये ढूंढते हैं कम से कम तनख्वाह वाला कोई मिले, और काम ज्यादा लूं तनख्वाह थोड़ी दूं, उल्टा कर दो, काम थोड़ा लो तनख्वाह ज्यादा दो, अल्लाह तुम्हारा रिस्क बढ़ा देगा और इनकी दुआएं तुम्हें मिल जाएंगी, ये तुम्हारे साथ मोहब्बत करने वाले बन जाएंगे।
वो कहेगा 80,000 नौकर हैं, उई तनख्वाह कौन देगा? ये मैं वैसे ही जोक कर रहा हूँ, कोई फिक्र ना करो, तनख्वाह अल्लाह देगा। इनको रोटी कौन खिलाएगा? वो भी अल्लाह ही खिलाएगा। अब वो ऐसे गॉड ऑफ ऑनर नहीं होता यहाँ, हालांकि सारे सबको पता है कि बेवकूफ बना रहे हैं। अगर यही सदर ना हो तो उसको कोई गॉड ऑफ ऑनर देगा? इसको खोते भी कोई नहीं चढ़ाएगा। तो सबको पता है ये ऐसे ही धोखा, लेकिन ये हकीकी गॉड ऑफ ऑनर होगा। 80,000 80,000 स्लेव्स अमा आन सय्यदना अन नज़ूरहु, अरे हमारे आका किधर रह गए थे, कहाँ चले गए थे? वो कहेगा शुक्र करो मैं आ गया, जो मैंने बड़ी मार खाई है, वो मुझे फरिश्तों ने बहुत मारा है, मुझे बड़े लितर पड़े हैं, शुक्र करो मैं आ गया हूँ। अब वो ऐसे नाचते हुए, ढोल बजाते हुए, म्यूजिक बजाते हुए उसके साथ चलेंगे। आगे एक तख्त होगा, उस पर बिठाएंगे, कहेंगे हमारे सरदार तो बड़ी देर से आए हैं, भूखे हैं, खाना खिलाओ। तो एक हाथ में डिश होगी, एक हाथ में ड्रिंक होगा। कितने? 80,000। तो मिलकर कितने बन गए? 1,00,000 और 60,000। 1,60,000 दोनों मिलकर। एक हाथ में डिश है खाने की, एक हाथ में ड्रिंक है। तो ये अल्लाह के फजल करम से 80,000 डिशें खा जाएगा, 80,000 ड्रिंक पी जाएगा, और हर लुकमे की लज्जत पहले से ज्यादा होगी, हर घूंट की लज्जत पहले से ज्यादा होगी। यहां उल्टा होता है। और जब वो खा लेंगे कहेंगे अच्छा हम जा रहे हैं, आप अपने घर वालों से मिल लें। वो कहेगा किधर है? वो नजर तो आएंगे नहीं, किधर है? इतने में ऐसे गायब हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि 80,000 को डिस्पर्स होते हुए तो काफी देर लगेगी ना, नहीं, वो यूं गायब हो जाएंगे ऐसे। और जब एकदम सामने से पर्दा हटेगा तो वहां एक लड़की ऐसे बैठी होगी, ये स्टाइल ही ऐसा मजे का है वो ऐसे बैठी होगी ऐसे। अब इस बेचारे ने काले काले फरिश्ते देखे, अब जो देखा हूर को तो ऐसे करेगा, मुंह भी खुला होगा और आंखें भी, ना ऐसे देखेगा, ना ऐसे देखेगा, ना ऊपर देखेगा, ना नीचे देखेगा, ना ऐसे करेगा। और कितनी देर? 40 साल, 40 ईयर। आखिर वो कहेगी अमा लक फीना मिन रग़बतिन, आप मेरे पास नहीं आएंगे? हुई, कौन है तू? कौन है? कि तेरी बीवी हूं। वो है, मैं मर गया, मैंने देर क्यों की? वो दौड़ लगाएगा और जाकर उसको ऐसे ना ऐसे अपने हक करेगा, और ऐसे खड़े 70 साल का हक होगा। 70 साल ऐसे। एक जगह मैं बयान कर रहा था, एक बड़े मियाँ बैठे थे, उनको जोश आ गया, कहने के मौलवी साहब सिर्फ मौन का होगा कि आगे भी कुछ होगा कि नहीं? बहुत कुछ है, आता सही, आगे भी बहुत कुछ है। भाइयों, इतनी बड़ी जिंदगी के लिए अल्लाह ने क्या सौदा किया? कि ये थोड़ी सी जिंदगी है, 5 वक्त नमाज पढ़ो, रिस्क हलाल कमाओ, हराम से बचो, नफरतों से बचो, फिरका वारियत से बचो, लड़ाइयों से बचो, माँ बाप को इज्जत दो, बीवी को एहतराम दो, बच्चों को मोहब्बत दो, बच्चों के लिए, बीवी के लिए, माँ बाप के लिए टाइम निकालो। ये परसों वहां डरबन में 1-2 ताजरों से मुलाकात हुई, तो मुझे पता चला कि वो इतवार को भी छुट्टी नहीं करते। मैंने कहा तुम तो एक गधे की तरह हो, जो सारा दिन बस काम 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 काम, ना तू बच्चों का, ना तू बीवी का, ना तू माँ बाप का, ना तू अपने आप का, तेरे पैसों का क्या फायदा? क्या करेगा इनको? टाइम निकालो बच्चों के लिए, माँ बाप के लिए, बीवी के लिए, आपस में मोहब्बत से रहो। सबसे ज्यादा अल्लाह खुश होता है खामिद और बीवी के प्यार पर, सबसे ज्यादा। और शैतान को सबसे ज्यादा तकलीफ होती है खामिद और बीवी के प्यार पर, और सबसे ज्यादा खुशी होती है खामिद और बीवी की लड़ाई पर, सबसे ज्यादा खुश होता है। रोजाना शैतान अपनी असेंबली बुलाता है, असेंबली में पूरी रिपोर्ट पेश की जाती है, क्या किया? तो वो ऐसे बैठे होते, ऐसे आवाज आती है उसके कान में, जिना करवाया, चोरी करवाई, कत्ल करवाया, लड़ाई करवाई। देख रहे हो, ये हदीस में है, मैं उसको एक्शन बना के दिखा रहा हूं। इतने में एक काला सा शैतान पीछे खड़ा होता है, कहता जी मैंने मियां बीवी की लड़ाई कराई, ठीक है, ऐसे बैठता और उसका ऐसे गले लगाता है। वो कहता हो कुत्ते वो कम था, ऐ करके आया। शराबी की शराब उसकी जात तक है, जानी का जना उसकी जात तक है। खामिद और बीवी की लड़ाई नस्लों को बर्बाद कर देती, खानदान बर्बाद हो जाती। तो अभी बीवियों के लिए वक्त निकालो,
अपने माँ बाप के लिए वक्त निकालो अगर आपके साथ रहते हैं, बच्चों के लिए वक्त निकालो। चूंकि आप इस्लामी मुल्क में नहीं रह रहे, अगर आप अपने बच्चों को टाइम नहीं देंगे तो ये ज़ाय हो जाएंगे। इस्लामी मुल्क में कोई बच्चा ज़ाय होता है तो वो काफिर नहीं होता है, बदमाश हो जाता है, नशई हो जाता है, बुरा हो जाता है, लेकिन इस्लाम नहीं छोड़ता। यहाँ इस्लाम छोड़ रहे हैं, बर्बाद हो गई नस्ल। मैं तो पूरा यूरोप अमेरिका फिर फिर के आंसुओं से रोता हूँ कि जिन लोगों ने अपने बच्चों को टाइम नहीं दिया, अपनी बीवियों को टाइम नहीं दिया और सिर्फ अपना कारोबार जॉब डबल जॉब, उनके बच्चे दहरी हो गए, ईसाई हो गए, कुफर में चले गए। तो अपने बच्चों के लिए वक्त निकालो, अपने आप के लिए वक्त निकालो। छुट्टी को छुट्टी के तौर पे मनाओ, अपने मोबाइल ऑफ कर दो छुट्टी के दिन, न किसी का सुनो न किसी को करो। और खास तौर पर जब आप घर में बैठते हो बच्चों के साथ, बीवी के साथ, तो उस वक्त इसको मत ऑन करो। ये मोहब्बतों को तोड़ देने वाली चीज है। मैं अपनी बीवी से बात कर रहा हूं, मिसाल दे रहा हूं, आगे उसका फोन करता टर्न, कहते ये थोड़ी कॉल ले लो, अच्छा भी ले लो, लेकिन मैं अंदर से बुझ गया। बीवी मुझसे बात कर रही हो, मेरे फोन ने किया टर्न, मैंने कहा मैं जरा गल सुन लूंगा, वो अंदर से मिट गई। और ये छोटे बच्चों के साथ बड़ी ज्यादती करती है माएं, ड्रामा देख रही हैं, बेटा आता है अम्मा मॉम, कहते हाँ बोलो, नजर यहां से नहीं हटी, नजर ड्रामे पर ही है, हाँ बोलो मॉम मुझे चाहिए, बाद में आना, नहीं मुझे अभी चाहिए, कह रही हूं बाद में आना, नहीं मुझे अभी चाहिए, दबाओ जाओ लू के पट्टे। बच्चों को तबाह कर दिया। जितना वक्त, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारा दिन तुम फोन बंद करो या सारा वक्त घर में फोन बंद करो। जब अपने बच्चों के साथ वक्त निकालो बैठने के लिए, बीवी के साथ, माँ बाप के साथ, उस वक्त इसको बंद कर दो। ये तो टॉयलेट में भी सौदे करते हैं, जो काम करने गए थे वो बीच में रह जाता है और उठा लो, बेच लो, ले लो, दे लो। इन ताजरों का ये हाल है, इनकी क्या लाइफ है, रोटी खाते हुए भी सौदे कर रहे होते हैं। एक पाकिस्तान के बहुत बड़े ताजर, हम खाने पर इकट्ठे थे, उसकी घंटी बजी, उसने कान से फोन लगाया और आधा घंटा वो खाना भी खाता रहा और फोन भी सुनता रहा। मैं कहता तुमसे तो हम बड़े अच्छे हैं कि तुम्हारे इस पैसे का तुम्हें क्या फायदा जो तुम्हें रोटी भी नहीं खाने देता। तो मतलब एतदाल से चलो, दरमियानी चाल चलो, ऐसे पागल ना बन जाओ इसके पीछे कि ना बच्चों का होश रहे, ना अपना होश रहे, ना बीवी का होश रहे, ना माँ बाप का होश रहे। अगर आप मालदार हैं ज़कात दें, यहां भी गरीब लोग हैं, ज़कात दें और सदकात इन गरीबों को, गैर मुस्लिमों को दें। अल्लाह ताला गैर मुस्लिम की भी सुनता है और मुस्लिम की भी सुनता है, सबकी सुनता है। किसी भी दुखी की तुम्हें दुआ लग गई, चाहे वो गैर मुस्लिम भी है ना, अल्लाह के अर्श को हिला देगी। तो सखी बनो। अल्लाह को सखावत पसंद है, बुखल पसंद नहीं है। अल्लाह को सखावत पसंद है। ज़कात देने वाला ना सखी होता है ना बखील होता है, ना सखी होता है ना बखील होता है, वो दरमियान में होता है। जैसे हमारी जेंडर एक होती है, दरमियान वाली नस्ल एक होती है ना, एक मर्द है, एक औरत है, एक दरमियान में, उसको आप क्या कहते हैं? ख्वाजा सरा, खुसरा, और क्या कहते हैं? जेंडर है? वो कुछ शर्म की बात है? सही हुजूर क्या कहते हैं? वो तुम इतने अंग्रेजी वाले बैठे, तुम्हें पता कोई नहीं? समझ तो गए हो ना मैं क्या कह रहा हूं? अच्छा, आप एक कहानी सुनो। जब वो ज़कात से ऊपर देता है तो फिर वो सखी बनता है। खुसरो परवेज, जिसने हमारे नबी का खत फाड़ दिया था, ईरान का बादशाह, उसके पास एक मछली वाला मछली लेकर आया, उसको बड़ी पसंद आई, उसने कहा 4000 दिनार दे दो। 4000 दिनार कई करोड़ रुपया बनता है। तो उसकी बेगम शीरी साथ बैठी थी, उसने उसके कान में कहा, ये क्या किया है? एक मछली पे 4000 दिनार, खजाना खाली करोगे? वापस लो। उनका मैं वापस लूं? मैं बादशाह हूं, मैं कैसे वापस लूं? मैं तो नहीं लूंगा। कहा तुम इसको बुलाओ, इससे पूछो ये नर है या मादा है, मेल है या फीमेल है। अगर कोई ये मेल है तो तुम कहना भाई हमें फीमेल चाहिए थी, तो तुम ये मछली वापस लो, हमारे पैसे। अगर वो कहे कि ये फीमेल है तो तुम कहना भाई हमें मेल चाहिए था, तो ये अपने मछली वापस लो, हमारे पैसे वापस करो। उन्होंने कहा हाँ ये ठीक है। उन्होंने बुलाया, इधर आओ भाई, ये मछली मेल है या फीमेल है? कि जी ना मेल है ना फीमेल है, ये दरमियान वाली है, खुसरा है। बादशाह इतना हंसा, उसने कहा 4000 और थे। वो शीरी को गुस्सा चढ़ गया कि ये क्या हुआ, 8000 दिनार। अब वो जो वो कागज तो होते नहीं थे, सिक्का होता था,
दीनार सोने को होता था। वो जब वो गठरी बांध के चलने लगा तो 1 दीनार गिर गया, तो उसने वो भी उठा लिया। तो शीरीन तो पहले ही गुस्से में थी, कहा देखा इस कमीने को देखा, इतना ये लालची है, इसको इतने मिल गए कि इसकी 7 नस्लों को काफी हैं, 1 गिरा है वो भी उठा लिया है, इससे वापस लो। उसने उसको फिर बुला लिया, ओए बदबख्त, तुम्हें इतना दे दिया था, अगर 1 दिनार गिर गया था तो क्या था? कहा हुजूर इस पे आपका नाम लिखा था, किसी का पैर आता तो बेअदबी होती तो मैंने उठा लिया। मैंने कहा 4000 और दे दो। सखी बनो, बखील न बनो, मोहब्बत करो, नफरत ना करो, न मजहब के नाम पर, न कौम के नाम पर, न जुबान के नाम पर। इख्तलाफ है तो है, लेकिन नफरत नहीं होनी चाहिए, चाहे सियासी है, चाहे वो मजहबी है, चाहे वो फिक्ही है, जो भी है, मोहब्बत सबसे पहले है। और अगर आपस में कोई लड़े हुए हो तो सुलह कर लो, यहां से उठ के, नाराज ना होना, एक दूसरे पर गुस्सा आ जाना नेचुरल है, लेकिन उसके बाद मैं बोलना नहीं, बीवी से नहीं बोलते, लड़ाई होगी बीवी से बोलना बंद, कितनी बड़ी बेवकूफी है। बीवी नाराज होगी, खामिन से बोलना बंद, कितनी बड़ी बेवकूफी है। बच्चों पे कितना बुरा असर पड़ता है इसका। तो झगड़ा हो जाए नेचुरल है, लेकिन बस बोलना नहीं, ये गलत, ये अननेचुरल है। मिलो, बोलो, मोहब्बत रखो। क्या करोगे? नफरत लेकर मर गए तो क्या करोगे? तो अल्लाह को राजी करने के लिए मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, मेरी आप सबसे गुजारिश है कि हम अपने रब की मान के चलें। और जितना मजमा माशाल्लाह, सब मुझे अक्सर नौजवान नजर आ रहे हैं, एक वादा हम सब अल्लाह से करते हैं कि हम तौबा करें अल्लाह की बारगाह में। और तौबा ऐसा अमल है कि बाज़ औक़ात नेकी से अल्लाह इतना खुश नहीं होता जितना अपने बंदे की तौबा से खुश होता है। और अल्लाह ऐसा, मैं क्या कहूं, कैसे कहूं, वाहिद बादशाह है जो माफ करने पे खुश होता है। और जितनी दफा तौबा टूट जाए, तौबा करोगे तो वो खुश होगा। हम अपने बच्चों से कहते हैं आइंदा नहीं करोगे ना, वादा करो आइंदा नहीं करोगे। जी मॉम, मैं आइंदा नहीं करूंगा, और मेरे रब की कसम, मेरा रब कभी भी नहीं पूछता फिर तो नहीं करोगे, बल्कि कहता है फिर भी हो जाए तो आ जाना, मैं माफ कर दूंगा, फिर भी हो जाए तो आ जाना, मैं माफ कर दूंगा। और अल्लाह हदीस में कहता है, मेरा बंदा तो इतने गुनाह कर कि रोशनी वाली जमीन के ऊपर उनको रखता जा और जाकर आसमान की छत से लगा दे अपने गुनाहों को, और फिर सिर्फ एक दफा कह दे या अल्लाह माफ कर दो, मैं सारे ही माफ कर दूं। तो तौबा करते हो? कहो या अल्लाह मेरी तौबा। आवाज नहीं आई, फिर कहो, फिर एक दफा कहो, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम। जिसने दिल से कहा है वो पाक हो गया, वो साफ हो गया, उसके सारे छोटे बड़े सब गुनाह माफ हो गए। इतना आसान है अल्लाह को राजी करना। नमाज को पाबंदी से अदा करो, अपनी ज़कात अदा करो, और गरीबों की मदद करो, प्यार मोहब्बत से रहो। और तबलीग में 3 दिन लगा लिया करो, 4 महीने के इरादे करो, चिल्ले के इरादे करो, 3 दिन हर महीने लगा लिया करो, तो आपकी पूरी जिंदगी तब्दील हो जाएगी। इसके भी इरादे करते हो ना इंशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंत अहलुहु फसल्लि अला मुहम्मदिन कमा अंत अहलुहु वफल बिना मा अंत अहलुहु इन्नका अहलु तक़वा व अहलुल मग़फ़िरा। या अल्लाह, ये अहले ईमान का मजमा है और पराए देश में है। या अल्लाह, गैर इस्लामी देश है, हम सब तेरे महबूब की उम्मत जमा है, हमने अभी तौबा की है, हमारी तौबा को कबूल फरमा। या अल्लाह, हमें माफ़ फरमा। हमारे यहाँ छोटे भी बैठे हैं, बड़े भी बैठे हैं, बूढ़े भी हैं, जवान भी हैं। या अल्लाह, सबकी तौबा कबूल फरमा और पूरी उम्मत पर आई हुई मुसीबतें टाल दे, और उम्मत के लिए रहम का दरवाज़ा खोल दे, रहम का दरवाज़ा खोल दे, रहम का दरवाज़ा खोल दे। पूरी उम्मत, पूरी दुनिया में परेशान हाल है, तबाह हाल है। आज के फिरौन बड़े ताकतवर हैं या अल्लाह, आज के असहाब फील बड़े ताकतवर हैं या अल्लाह। अबरहा के असहाब फील तो गोश्त पोस के हाथियों वाले थे, हमारे असहाब फील लोहे के हाथियों वाले हैं। या अल्लाह, खुदाई के दावेदार हैं और हमें ललकारते हैं, अपने खुदा को बुलाओ। या अल्लाह, हम भी मासूम बच्चे की तरह, जैसे वो माँ की तरफ निगाह उठाता है और रोता है, ऐसे हम भी आसमान की तरफ हमारी निगाहें हैं और आंसू हमारे थमते नहीं कि या अल्लाह तू आ जा, या अल्लाह तो अपने हबीब की उम्मत की मदद के लिए आ जा, हमें इन दुखों से मुसीबतों से निकाल ले, अपने दीन को पूरी दुनिया में जिंदा फरमा दे। ये जितना अहले ईमान यहाँ साउथ अफ्रीका में हैं या दुनिया में जहाँ भी हैं, इनकी हिफाजत फरमा, इनकी नस्लों की हिफाजत फरमा, इनकी मसाजिद को आबाद फरमा, इनके मकातिब और मदारिस को आबाद फरमा, इनके कामों में बरकत दे, इनकी ज़िंदगी में बरकत दे, इनकी सेहत में बरकत दे, इनमें आपस में लड़ाइयाँ ख़त्म फरमा। वो मज़हब के नाम पर हों या कौम के नाम पर हों या किसी भी वजह से आपस में नाराज़ हों,
تو ان کی सुलह करवा, इनकी मोहब्बतें कायम फरमा। और या अल्लाह जितने हमारे ईमान पे रुखसत हो गए और कब्रों में चले गए उनकी कब्रों को जन्नत का बाग बना। और या अल्लाह जब हमारे जाने का वक्त आए तो हमें भी ईमान पे खात्मा नसीब फरमा। या अल्लाह हम सब तेरी रजा में जमा हुए। या अल्लाह ये सारा मैं गवाही देता हूँ, ये सारा मजमा तेरी रजा के लिए आया है।